Today I'll be talking on the healing of the nobleman's son. तो आज मैं वो सुबेदार के बेटे के चंगाई के विषय में प्रचार So करूंगा। let's read the word first. आइए प्रभु के वचन में पहले This चलते is the हैं। second miracle Jesus did after he turned water into wine. यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदलने के बाद ये दूसरा चमत्कार किया। You know, let's learn. Let's read from book of John chapter 4 46 to 54. आइए योना का चौथा अध्याय 46 से 54 पढ़ेंगे। Now verse 46. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he had made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. जब वो फिर गलील के कना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। Verse 47. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। 48. Then Jesus said to him, very important, you need to mark in your Bible. फिर यीशु ने उससे कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइबल में रेखांकित कीजिए। Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। This is a very important statement what Jesus made. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो यीशु ने कहा। You people, unless you people see signs and wonders, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे you will by no means believe. What a तब तक statement. कदापि विश्वास न करोगे। Okay, 49. The nobleman said to Jesus, Sir, come down before my child dies. राजा के कर्मचारी ने यीशु से कहा, ये प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। Now again, he's pleading, come down before my child dies. You don't have faith. वो कहता है कि मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, उसके अंदर विश्वास नहीं है। 50. Jesus said to him, Go your way, your son lives. So the man believed, mark in your Bible, the word that Jesus spoke to him, he went his way. यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Your son lives. वह मार्ग में ही जा ही रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। Feeling the power of God in my body. देखो, प्रभु का सामर्थ मेरे शरीर में महसूस हो रहा है। Go your way. जा तेरे मार्ग। Your son lives. What a word. वो कहता है, तेरा लड़का जीवित है। Verse 52. Then he inquired of them the hour when he got better, and they said to him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. उसने उनसे कहा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। Come on, I feel the goosebumps in my body. My goodness. So the father knew, verse 53, that it was at the same hour in which my Jesus said to him, Your son lives, and he himself believed, and his whole household. तब पिता जान गया कि वो उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास Feel किया। like the electricity passing in my body, I'm telling you. ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में बिजली दौड़ रहा है। And verse 54, important. This
again is the second sign Jesus did when he had come out of Judea into Galilee. यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। Amen. Hallelujah. Father, we thank you for this blessed word of God that we are reading and we are going to learn from this gospel. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस धन्य वचन के लिए जो हमने अभी पढ़ा है और इससे सीखने वाले सुसमाचार के Teach द्वारा। us from this word of God. इस वचन के द्वारा तो हमें सिखा। Holy Spirit, enlighten us पवित्र आत्मा तो हमें ज्योति दे, so that we will be like that noble man who believed your word. ताकि इस राजा के कर्मचारी जैसे हम बने जिसने विश्वास किया तेरे वचन In पर। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Let's begin. Let's move on in the miracles of Jesus Christ. आइए यीशु के चमत्कारों में My आगे Lord, बढ़ेंगे। this is the second miracle that Jesus did. ये दूसरा चमत्कार है जो यीशु मसीह When ने he had come out of Judea into Galilee, जब यहूदिया से बाहर वो गलीली में आया। the Bible scholars tells us the Lord Jesus did the miracle around the age of 30 in the summer. तो बाइबल स्कॉलर बताते हैं हमें कि 30 साल के इस उम्र उम्र में उसने ये चमत्कार किया। You know, it was in the time of summer. और वो गर्मी का मौसम था। In this scripture, ये वचन में the noble man was a Roman who lived in the king's palace. और ये जो कर्मचारी था वो रोम से था और वो राजा के महल में रहता था। And he was in the servant quarters. और वो जो नौकर लोगों के लिए जो क्वार्टर्स था उसमें रहता His था। son was very sick. उसका बेटा बहुत ही बीमार And the था Bible says he was going to die. और बाइबल कहता है कि वो अब मरने पर था। But he had heard that Lord Jesus Christ had turned water into wine. लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदलते He हुए had done many miracles. उन्होंने बहुत चमत्कार किए। You know, hallelujah, that is what he's feeling. ऐसा उसे लग रहा है। And this is the second miracle that Jesus did. देखो ये दूसरा चमत्कार है जो यीशु मसीह ने When he किया। had come out of Judea into Galilee, यहूदा से जब वो गलीली में प्रवेश किया, the Bible scholars tells us, बाइबल स्कॉलर हमें बताता है and Jesus was at the age of 30. यीशु मसीह 30 साल की उम्र का था। Hallelujah. In this scripture, I want to tell you, noble man is believing Jesus. ये वचन में के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि ये राजा का कर्मचारी यीशु पे विश्वास करता है। Hallelujah. He heard that Lord Jesus Christ has turned water into wine few days ago in one of the marriages. तो उसने सुना था कि कई कुछ दिन पहले एक विवाह में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। Hallelujah. Now, even he did not thought he is not a Jew, but he is a Roman. देखो वो यहूदी भी नहीं था, एक रोमियो सरकार था। Hallelujah. But Christ will help him. क्या यीशु मसीह उसका सहायता करेगा? Now, believing what Jesus has done, he never thought whether he is a Jew or whoever he is, but his focus is his son is sick and he is focusing on Jesus. देखो उसका ध्यान केवल इतने इस पे के है कि वो ये नहीं सोच रहा है कि यहूदी है या यहूदी नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, वो उसे चंगाई पाना है। He walked off a day, आधा दिन वो चलकर गया अधूरी you पर। know, to meet Jesus. यीशु को मुलाकात करने के Today, लिए। some people are still sleeping. They don't want to meet Jesus. आज लोग अभी भी सोए हुए वो यीशु से मिलना नहीं And when चाहते the हैं। problem comes, they are ready to walk in the midst of the tsunami also. तो प्रॉब्लम जब आता है तो सुनामी में भी चलने के लिए वो तैयार है। Hallelujah. This man, Roman soldier, this noble man is running towards Jesus. देखो ये राजा का कर्मचारी ये यीशु मसीह को मिलने के लिए दौड़ कर चला Now listen, जाता है। how does he came to know that Jesus is a healer? कैसे पता चला उसे कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला How करते your हैं? neighbor will come to know that Jesus is a healer? तुम्हारे पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि यीशु ही How चंगाई the करता है? people in the hospital will come to know that Jesus is a healer? अस्पताल में लोग कैसे उनको पता चलेगा कि यीशु चंगाई Unless you करता don't है? share with your neighbor, unless you don't share in the hospitals, they will never come to know that Jesus is the healer, one who heals. तो जब तक तुम अस्पताल में या तुम्हारे पड़ोसी से नहीं इस बात को बांटोगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि यीशु चंगाई देता Now this है। morning, point
number one, we should always share our testimonies to others. तो पहला मुद्दा, हमेशा अपनी गवाही हमें दूसरों के साथ बांटनी है। If you are not sharing the testimonies to others, you are blocking someone's opportunity for a miracle. अगर तुम अपनी गवाही को नहीं बांटते हो तो किसी और को जो जिसे चमत्कार प्राप्त होना चाहिए था उसमें तुम रुकावट बनते If हो। this noble man, if somebody would have not shared the testimony about Jesus turning water into wine, this fellow would have been lost his son. अगर ये आदमी को राजा के कर्मचारी को कोई और व्यक्ति आकर वो जो चमत्कार यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदलने का चमत्कार अगर उसके साथ नहीं बांटा होता तो वो यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं We जानता। are living in the end times. तो हम अंतिम समयों में You हैं। need to share your testimonies. तुम्हें अपनी गवाहियां बांटनी है। Testimony what Jesus done in your life. तो यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है उसे बांटना How है। he changed your lives. उसने तुम्हारे जीवन को कैसे How he बदल दिया, healed you. कैसे चंगाई दी। Come on, let the world know how God delivered you from the bondage and sickness and the sins. तो लोगों को पता चलने दो कि यीशु मसीह ने तुम्हें कैसे बंधन से और बीमारी से और पाप से बचाया है। Bible says the gospel will be preached to the entire world, then the end will come. पवित्र शास्त्र कहता है कि सुसमाचार पूरे विश्व में प्रचार किया जाएगा फिर ही अंत Some आएगा। people don't want to preach the gospel because they don't want to see the end of the world. कुछ लोग सुसमाचार नहीं प्रचार करना चाहते क्योंकि वो उस जगत का अंत नहीं They देखना want to चाहते, enjoy the pleasures of the world. क्योंकि संसार के सारे आनंद को उठाना चाहते हैं। Tonight, this morning, I want to tell you in Jesus' name. आज सुबह को यीशु के नाम में बोलना If चाहता हूँ, God has given an opportunity to open your mouth and share the testimony what God has done for you, your life, it will be benefit, it will be an opportunity for others to receive miracles. तो अगर प्रभु ने तुम्हारे जीवन में जो किया है तो प्रभु तुम्हें वो मौका दे रहे हैं, तुम्हें मुंह खोलकर अपनी गवाही को बांटना है ताकि दूसरे भी इस चमत्कार को Now the प्राप्त Bible करें। says he met Jesus. अभी बाइबल कहता है उसने यीशु से मुलाकात की। Directly is asking Jesus, come to my house वो डायरेक्ट यीशु को बोल रहा है कि मेरे घर आ, to heal my son. मेरे बेटे को चंगाई And कर। again and again is imploring him and telling him, come to my house. तो बार बार यीशु से विनती कर रहा है, कह रहा है कि तू मेरे घर आ। Jesus got upset with him. यीशु मसीह नाराज हुए He उससे, scolded him saying, उसे कहा डांटते हुए, he scolded him and saying, you will not believe until you see miracles. जब तक तू चमत्कार और चिन्ह नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। You will not believe until you see signs and wonders. जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम को नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। He asked the nobleman, उसने वो कर्मचारी से पूछा, why is it so difficult for him to believe? तेरे लिए इतना कठिन क्यों है विश्वास करना? Once I speak, that's it. जब एक बार मैं कुछ बोलता हूँ तो वो पूरा होता है। And the Bible says, when Jesus spoke the word, his son was healed. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने जब वो वचन कहा वो उसी समय चंगा हो गया। I don't have to come to your house मुझे तुम्हारी घर आने की जरूरत नहीं, to heal your son. तुम्हारे बेटे को चंगा करने के My लिए। word is enough to heal your bodies. मेरे शब्द काफी है तुम्हारे शरीरों में My चंगाई लाने word के लिए। is enough to heal you. मेरा वचन मेरा शब्द Meaning, काफी है तुम्हें चंगा करने के You लिए। are telling Jesus to come to your house. तुम यीशु को कह रहे हो कि मेरे घर में आ जा। He's saying, Jesus says, I don't work the way you want me to work. यीशु कहता है तू जैसा चाहता है वैसा मैं नहीं काम करूंगा। You have to learn to agree the way I give you. तो तुम्हें सहमत मेरे साथ हाँ। सहमत होना चाहिए क्योंकि जिस रीति से मैं देना चाहता हूँ उसे Jesus करने is के लिए। not in the market to pick it up and bring it in the house. यीशु मार्केट में नहीं है कि उसे उठाकर घर में ले आए। Hallelujah. I don't want to work the way you ask me to work. तू जैसा चाहता है मैं काम करूँ वैसा मैं नहीं करूँगा। I will work the way I decide. जैसे मैं निर्णय लूंगा वैसा ही मैं कार्य करूंगा। You have to learn to agree the way I give you. तो तुम्हें वो सहमत होना जरूरी है जिस रीति से मैं तुम्हें दूंगा। Then Jesus says, फिर यीशु बोलते हैं, go thy way, thy son liveth. जा तेरे मार्ग पे तो तेरा बेटा जीवित The है। nobleman believed and went back and his son was healed. That's the whole story. और वो राजा का कर्मचारी विश्वास करता है और आज निकल के चला जाता है और उसका बेटा चंगा हो जाता है। वही कहानी है। This nobleman went back and spoke the truth to everybody in the house. अभी ये Hello? राजा का कर्मचारी अपने घर में जाके ये सत्य सबको बोलता है अपने घर And में। what happened? तो क्या हुआ? The Bible says everyone accepted the Lord in their lives.
पवित्र शास्त्र कहता है कि सब लोगों ने उसे अपने जीवन में प्रभु के रूप में अपनाया, The ग्रहण Bible किया। says in verse 53, the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, your son lives, and he himself believed, and his whole household. तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उनसे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, Come on. और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। Now, what I want to focus this morning is from this gospel. देखो ये सुसमाचार के द्वारा आज शाम को क्या कहना चाहता हूँ मैं। Word has power. शब्दों में सामर्थ There है, is power in the word of God. प्रभु के वचनों में सामर्थ है। Your future is in the words of God. देखो तुम्हारा भविष्य प्रभु के वचनों में God आधारित है। says, my word will take care of you. प्रभु कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हें Now संभालेगा। listen, life without God's word does not have a meaning. देखो वचन जीवन परमेश्वर के वचन के बिना उसमें कोई अर्थ Yes, नहीं। the life without God's word does not have any meaning in your life. बिना परमेश्वर के वचन के हमारे जीवन में फिर कोई अर्थ नहीं। God is not only a promise making God, but He's a promise keeping God. परमेश्वर केवल वादा ही नहीं करते लेकिन वादों का पक्का This परमेश्वर है। morning, I want to take you in this journey three things. आज शाम को 3 चीजों में तुम्हारे सफर करना Three चाहूंगा। principles that you have to keep in your mind, in your life to receive the miracles of Jesus तो Christ. तुम्हें 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में रखना जरूरी है यीशु मसीह के चमत्कारों को पाने के Number लिए। one, when we pray, we must hear God. पहला मुद्दा, जब हम प्रार्थना करते तो हमें प्रभु की आवाज प्रभु से सुनना जरूरी है। We must let God talk. तो हमें प्रभु को बोलने को देना है। Sometimes we have to listen to Him because He will always have better plans than us. कभी कभी हमें प्रभु की आवाज सुननी है क्योंकि हमेशा प्रभु की जो योजना हमारे जीवन के लिए होती है वो उत्तम ही होती If है। we don't listen to Him, अगर हम उसे नहीं His सुनोगे plans are not revealed to you. तो उसकी योजना जो है वो तुम्हें प्रकट नहीं होंगे। That's what I'm saying. The Word of God has power. इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। And God's Word is your future. तो प्रभु का वचन ही तुम्हारे लिए भविष्य है। God says, my Word will take care of you, my brother, my sister. प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन तुम्हें संभालेगा, मेरा भाई And मेरी this बहन। morning the Bible says, Isaiah 55 verse 9. आज प्रभु का वचन कहता है कि यशाया 55:9 You know, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और क्योंकि मेरी और तेरी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। That means He thinks about you all the time. यानी प्रभु हमेशा निरंतर तुम्हारे बारे में सोचते रहते Your हैं। days are in His holy hands. यानी तुम्हारे दिन उसके पवित्र हाथों में हैं। What is a thing, the thought that are God's size and God's ways? तो यानी वो क्या कहता है कि परमेश्वर के सोच जैसे सोचो। You don't think like God, लेकिन प्रभु जैसे नहीं सोचते हो तुम। because Bible says heavens are higher than the earth. बाइबल क्या कहता है कि आकाश तो पृथ्वी से भी अंतर है। You should think like God thinks. तो तुम्हें प्रभु कैसे सोचता है, यहोवा सोचता है, वैसे सोचना You है। will be thinking only when you align your life in God's word. यानी तुम तब सोचोगे जब तुम्हारे अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाओगे। One day God asked Moses to take about 2 million people to cross the Red Sea. तो एक बार जब प्रभु ने मूसा से कहा कि 2 करोड़ लोगों को लेकर जा, लाल समुद्र पार करवा। They all were wondering what to do. 2 million people to cross over the sea. सब लोग चिंतित हुए क्या करना है हमें, क्योंकि 2 करोड़ लोग कैसे लाल समुद्र पार They are करेंगे। planning to swim across the sea. कुछ लोग योजना बना रहे कि हम तैर कर जाएंगे उस तरफ। They are thinking about building the boats to cross the sea. कुछ लोग सोच रहे कि बड़े बड़े जहाजों को बनाएंगे ताकि समुद्र पार कर सके। But God says, hey boss, Moses, लेकिन प्रभु कहता है मूसा, tell these people, ये लोगों से कहे, my ways are much greater than your ways, thinking about building the boat, मेरी गति swimming. तो तुम्हारी गति से बहुत अंतर है। You know, you are thinking about building the boat and you are thinking about swimming, but I am thinking to divide the sea into 2 half. तू तो तैरने का सोच रहा है या बड़े बड़े नाव बनाने का सोच रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि समुद्र को 2 भागूं। If you stand with God's word, अगर तुम वचन के साथ खड़े हो, He will make a way for you, my friend. मेरे दोस्तों, वो तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। When you stand for God,
जब तुम प्रभु के लिए खड़े होते God हो will make a way for you as God thinks. तो प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा अपने विचारों के अनुसार। Hallelujah. His word is powerful. क्योंकि उसके वचन जो है वो बहुत ही Go, सामर्थी your है। son lives. Only one word. His word is so powerful. एक ही वाक्य कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है। We don't walk by sight, but we walk by faith. देखो हम दृष्टि से नहीं चलते लेकिन विश्वास से This चलते morning, हैं। I want to tell you, God has a plan for you. आज सुबह कहना चाहता हूं कि प्रभु ने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। And He's always asking, will you trade your thoughts for my thoughts? तो हमेशा ये सवाल पूछता है कि मेरे विचारों के लिए क्या तुम अपने विचार बदली करना चाहोगे? Instead of your ways, you take my ways. तेरे गति के बदले में तुम मेरी गति को ले। You know, you need to trade this morning your thoughts into God's thoughts. तो आज सुबह तुम्हें ये आदली बदली करना जरूरी, अपने विचारों को उन्हें देकर उन प्रभु के Get विचारों out को of लेना your है। own thoughts. अपने खुद के विचारों से बाहर Get निकल out आए, of your own ways. अपने मार्गों से बाहर Get आए। into God's size thoughts. देखो प्रभु के जो गति बहुत बड़ी उसमें चले। Get into the size of the ways of God. तो प्रभु के जो मार्ग है उसमें चले। This morning, I want to tell you, my friend, मेरे दोस्तों आज सुबह बताना that चाहता हूँ noble man, God, Jesus scolded him, unless you don't see signs and wonders, you don't believe. तो वो राजा के कर्मचारी को यीशु मसीह ने बुलाया और कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं This करोगे। morning, God is asking you to trade your thoughts and ways. देखो आज सुबह प्रभु तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे जो विचार और तुम्हारी खुद की जो गति है उसे जो है परमेश्वर को दे दो। Surrender your life to the word. अपने वचन के अधीन में हो Now, जाओ। I want to tell you the very first thing, you must hear God. तो पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रभु की आवाज सुनना। You must let God talk to you. तो प्रभु को तुमसे बातें करने दो। Now, point number 2, the principle number 2. दूसरा सिद्धांत, God will send His word, प्रभु अपने वचन को भेजेगा and the word is as good as His personal presence. तो जो उसका प्रभु का जो वचन है उसके उपस्थिति के बराबर है। Hallelujah. His word is as good as His प्रभु presence. का वचन उसके उपस्थिति के बराबर है। And this morning, I want to tell you, God's order will come true. परमेश्वर का जो आज्ञा है वो Now पूरा listen, होगा। when God orders, देखो जब प्रभु आज्ञा देता है that is in the favor of you. वो तुम्हारी ओर Meaning, से ही होगा, if तुम्हारे भलाई के लिए if होगा। God's word is standing in you, यानी अगर प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर खड़ा है it is His very presence, यानी उसकी खुद की उपस्थिति है and it is its favor. और प्रभु का अनुग्रह है। You know, God standing next to you and speaking on your behalf. यानी जैसे प्रभु तुम्हारे बाजू में खड़े हैं और तुम्हारी ओर से वो बोल रहे हैं। The God's word is there with you, देखो प्रभु का वचन तुम्हारे meaning साथ the में है। very presence of God is next to you. यानी प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे ही साथ में है। When God orders is in favor of you, देखो जब प्रभु तुम्हारी कृपा में आज्ञा देता है and it is the same God standing next to you and speaking on your behalf. तो वही परमेश्वर है जो तुम्हारे बाजू में खड़े हैं और तुम्हारी ओर से That's बोल what रहे the Bible says in Ecclesiastic chapter 8 verse 4. हैं। इसलिए सबोपदेशक 8:4 ऐसा कहता Where the है, word of king is, there is power. जहाँ राजा के वचन है वहां पे सामर्थ्य Who may है। say unto him, what dost thou? और कौन उसे कह सकता है कि तू क्या करता है? Hallelujah. Now you understand where the word of God is, अभी तुम समझ गए जहाँ पे प्रभु का वचन है there is His presence power. वहां पे उसकी उपस्थिति और उसका Go, सामर्थ्य your होता है। son lives. जा तेरा बेटा He जीवित took है। the word, उसने वचन लिया and as he was going, और जैसे वो जा रहा है the presence and the power of God was manifesting over the dead child. देखो वो उपस्थिति है प्रभु का सामर्थ वो मरे हुए बेटे के ऊपर। When you have the word, the dead situation will come alive in Jesus' name. देख तुम्हारे पास जब वचन है जो मरी हुई स्थिति तुम्हारे जीवन से जीवित हो जाएगी। Isaiah chapter 55 verse 10 says, यशाया का 55:10 कहता है, as the rain cometh down and the snow from heaven and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं हाँ। और वहां यों ही लौट नहीं जाते, हाँ। परंतु भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ। जिससे बोने वाले को बीज
और खाने वाले को रोटी The मिलती है। word that comes from heaven, His presence will not return back. It will stay back with you, my friend. देखो जो वचन उतरते आता है स्वर्ग से, वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो जरूर फल लाएगा। The rain cometh down. जैसे वर्षा आती है, The snow गिरती from है, heaven. और आकाश से हिम गिरती It है, is not going to return back to heaven, तो वैसे स्वर्ग में वापस नहीं लौट जाएगी, but water at the earth. लेकिन भूमि पर पड़कर उसे उपजती है, Make it bring forth and bud. जिससे और वो उपज उपजाती है, Hallelujah. It may give seed, the word of God to the sower, और जिससे बोने वाले को बीज मिलती है जो प्रभु का and the वचन है, bread to the eater. और खाने वाले को रोटी And मिलती this है। morning I want to tell you, आज सुबह को तुम्हें बोलना चाहता you हूँ, need to believe His word. तुम्हें प्रभु के वचन पे विश्वास His रखना है। word is His presence. उसका वचन ही उसकी उपस्थिति If you है। start listening to hear His word, अगर तुम उसके वचनों को सुनना शुरू करोगे, you will start experiencing His presence. तुम उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे। Meaning His presence is the order that makes your way clear. यानी उसकी उपस्थिति वो आज्ञा है जो तुम्हारे मार्गों को क्लियर कर देता The है। third principle, तीसरा सिद्धांत, miracle in our life should always lead us to believing in the Lord more and more, telling others. हमारे जीवन में जब कोई भी चमत्कार को या आश्चर्य कर्म को हम पाते हैं, उसका मतलब है हमें परमेश्वर पे अपना विश्वास और बढ़ाना है, और ज्यादा करना है, और दूसरों को भी उसके बारे में बताना है। When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आते हो, you should not come because of one miracle He's done. एक चमत्कार उसने तुम्हारे लिए किया इसलिए नहीं आना है। Yes, you have more requests, हाँ, तुम्हारे बहुत निवेदन है, but you need to share others what He has done, so लेकिन that they can believe and receive miracles. तुम्हें दूसरों के साथ में बांटना है जो प्रभु ने तुम्हारे साथ में किया, ताकि वो भी आशीषित हो जाएं। Miracles in our life हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म always lead us to believe in the Lord हमेशा हमें परमेश्वर का में विश्वास को बढ़ाता है, and tell others to believe the ताकि हम Lord. दूसरों को बताएं कि वो भी विश्वास कर You should सकें। always be thankful and you should always have the worshiping heart. हमेशा तुम्हारे अंदर एक धन्यवादित हृदय रहना है, और एक आराधना का हृदय होना जरूरी है। How you will be thankful? आप धन्यवादित कैसे Because He रहोगे? has done miracles for you. क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए आश्चर्य How कर्म किए। you will have the worshiping heart? आराधना का दिल के हृदय कैसे रखोगे? When you always share the gospel. जब तुम हमेशा सुसमाचार को शेयर This करोगे। morning I want to tell you, share Jesus to the people. आज सुबह बताना चाहता हूं कि लोगों के साथ में यीशु को बांटो। Our faith must change our way of living and speech. देखो, हमारा विश्वास जो है हमारा जीने का ढंग और बोलने का ढंग को बदलना है। We must take time to practice what we believe. तो जिस बात पे हम विश्वास करते हैं उसे समय लगाना है, उस पर This अभ्यास morning I करना want to है। tell you, we should preach the gospel. आज सुबह बताना चाहता हूं कि हमें सुसमाचार We बांटना should है। talk about the sacrifice on the cross. यीशु मसीह ने जो बलिदान क्रूस पे किया उसके बारे में लोगों को बताना In है। the span of this, never insult others' culture. देखो, इसके दौरान में दूसरों की जो परंपरा है उसको कभी Our भी Jesus is great. बेइज्जती मत करो। Our Jesus is great. हमारा यीशु He महान is the है, living God. वो जीवित But परमेश्वर He है। never taught us to insult anybody. यीशु ने कभी हमें दूसरों की बेइज्जती करने नहीं So सिखाया। always talk about the love of God. हमेशा परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ। Always talk to them what God can do in their life. हमेशा ये बात उन्हें बताओ कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर Let सकते me हैं। tell you, in this world, no one likes to be corrected in the presence of others, so talk in private. तो मैं बताना चाहता कि आज की दुनिया में लोग नहीं चाहते कि दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती हो, तो इसीलिए उन्हें अकेले में बातें Talk करो, with wisdom, बुद्धि से बातें so करो, that your effort will not go in vain. ताकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ न जाए। Speak in the way that they can relate what you're speaking. तो ऐसे बोलो, उनसे बोलो जिस रीति से वो तुम्हें समझ पाए कि Tell तुम क्या कहना what, चाहते tell हो। what God can do in their present life. उनके आज के जीवन में प्रभु क्या कर सकते हो बताओ उन्हें। Speak truth in Christ and not traditions. सत्य, यीशु मसीह में सत्य बोलो, परंपरा मत बोलो। Preach Christ crucified, nothing else. और क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार करो, और कुछ नहीं। I want to talk to you about 7 things what happened on the cross, what you can teach. तो मैं 7 चीजें बताना चाहता हूँ जो क्रूस पर घटी, जो तुम दूसरों को सिखा सकते Number हो। 1, forgiveness from the sin. पहला है Isaiah 53:4. पहला है पापों से क्षमापन, यशाया 53:5। Jesus was punished so that our sin might be forgiven. यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर लिया ताकि हमारे पापों का हम क्षमा He पा took the सकें। penalty so that we can be forgiven. यीशु ने वो दंड इसीलिए लिया ताकि हम क्षमा
क्षमापन when पाए। you teach others. जब तुम दूसरों को सिखाओगे। This noble man received the word, heard the word. देखो ये राजा के कर्मचारी ने वचन को सुना, उसने लिया He had the personal presence of that word, और उसने उसके अंदर प्रभु की निजी उपस्थिति आई and he asked what miracles happened, और उसने पूछा कैसे चमत्कार हुआ। and the same hour the miracle happened, उसी घंटे को, उसी समय घड़ी को वो चमत्कार and हुआ। the Bible says that his household was saved because he shared what he believed. और बाइबल कहता है कि उसका पूरा घराना बच गया क्योंकि उसने So विश्वास किया। you know the forgiveness from the sin. तो तुम जानते हो कि पापों से क्षमापन प्राप्त You know, करना। you can share about the forgiveness from sin. तो तुम्हारे पापों से तुमने क्षमापन कैसे प्राप्त किया उसके बारे में तुम शेयर कर Number सकते two, हो। Jesus is the forgiver. यानी यीशु मसीह क्षमापन देते Number हैं। two, you talk about the healing. दूसरी बात है तुम चंगाई के विषय में How बोलोगे। God you healed your illness. प्रभु ने तुम्हारी बीमारी से तुम्हें कैसे You चंगा can किया। say it is not, you can say illness is not God's will. तुम्हें कहना है कि बीमार होना प्रभु की इच्छा नहीं है। Sickness is not God's will. बीमारी परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल You नहीं can है। share health is God's will. स्वस्थ रहना परमेश्वर की इच्छा है। He took away all our sicknesses. उसने हमारे सारे बीमारी को ले He is a लिया। healing God. वो चंगाई के He is परमेश्वर a है। forgiving God. वो क्षमापन देने वाले If ईश्वर God है। can heal the leprosy, if God can heal the noble man's son who is dying, He is the same unchanging Jesus. Present day He can heal you because His word is alive. अगर वो कोढ़ी को चंगा कर सकता है, वो राजा के कर्मचारी को चंगाई दे सकता है, तो वही परमेश्वर है जो कभी ना बदलने वाले ईश्वर है, आज भी वो देंगे। 1 Peter chapter 2 verse 24 says, पहला पत्रस का 2:24 कहता है, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. See how much you can share. देखो वचन कैसा कहता है कि 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस का 2:24 कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर ले लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने हम पापों के लिए मर गया कि धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। You know, 7 things you can talk about the cross. क्रूस के विषय में 7 चीजें तुम बोल सकते हो। Forgiveness from the sin, पापों से क्षमापन, healing. चंगाई That is मिली। God's will to heal you. प्रभु की इच्छा है कि तुम चंगे हो You जाएं। know, by whose stripes we are healed, the Bible says. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके Number हैं, बाइबल 3, you कहता है। can talk about righteousness of God. तीसरी बात है प्रभु की धार्मिकता के विषय में तुम 2 हम बोल Corinthians सकते हैं। chapter 5 verse 21. दूसरा कोरिन्थियों का 5:21, For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप के अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Hallelujah. Jesus never knew sin. यीशु मसीह पाप को नहीं जानता He था। became sin वो हमारे लिए that पाप we बना, might be the righteousness of God ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता ठहरे in Christ Jesus. यीशु मसीह में। See, there are so many things to share. कितनी सारी This बातें noble हैं। man understood the power in God's word. देखो ये राजा के कर्मचारी समझ गए परमेश्वर के सामर्थ्य। Number 4, you can talk about the eternal life to the people. चौथी बात है हम अनंत काल के जीवन के बारे में बोल सकते हैं लोगों के Nobody साथ। talks about the eternal life. कोई भी अनंत काल जीवन नहीं बोलता People है। say dead and gone, dead and gone, dead and gone किधर? Where? तो सब लोग कहते हैं कि मर कर चला गया, मर कर चला गया, मर कर चला गया। तो कहाँ गए Talk to मर them के? about eternal life. After death there is a life. लोगों के साथ में अनंत जीवन के बारे में बताओ कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। John 10:10 says, यूहन्ना का 10:10 the कहता है thief कि cometh not but for to steal चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने आता and to है kill and to destroy. और घात करने और नष्ट करने But को। Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Hallelujah. You can talk about the eternal life. आप अनंत जीवन के बारे में बोल Jesus is सकते the हो। eternal life.
यीशु ही वो अनंत जीवन Now है। think about, we have forgiveness from the sin, देखो हमने पापों से क्षमापन प्राप्त we किया, have healing, चंगाई प्राप्त we हुई, have righteousness in God, प्रभु में हमें धार्मिकता प्राप्त we हुई, have eternal life. हमें अनंत काल जीवन Number मिला। 5, you can talk about blessings to them. और तीसरी बात है प्रभु के आशीषों के बारे में बोल Galatians सकते हैं। chapter 3:13 says, गलातियों का 3:13 कहता Christ है, has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on the tree, whoever you are, you will be a blessing, however cursed the situation is. मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Hallelujah. Now you understand, my Bible says, Cursed is everyone that hangeth on the tree. मेरा पवित्र शास्त्र कहता है कि जो भी काट पर लटकाया गया वो श्रापित है। Wherever you are, you will be a blessing. जहां पर भी तुम हो, तुम आशीष का कारण बनोगे। See, your sins have been forgiven. तुम्हारे पाप क्षमा हुए, You received a healing. तुम्हें चंगाई प्राप्त You हुई, became righteousness in Christ. मसीह में तुम धार्मिक ठहरे, You have eternal life. अभी तुम्हें अनंत जीवन मिला, You are a blessing to others. दूसरों के लिए आशीष बन गए। And then God wants to prosper you. अभी प्रभु तुम्हें संपन्नता देना चाहता 2 है। Corinthians chapter 8 verse 9 says, दूसरा कोरिन्थियों का 8:9 कहता है, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that he through his poverty might be rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। What the Bible says? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? You know the grace of our Lord Jesus Christ. What हमारे प्रभु amazing यीशु grace. मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो That though he was rich, कि वह धनी होकर भी, yet for our sakes फिर भी हमारे लिए he became poor. वो कंगाल बन गया। That why? क्यों? Through his poverty we might be rich. ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो Now जाएं। how we become prosperous? तो हम कैसे संपन्नता पा There is सकते an हैं? exchange, वहाँ पे एक अदली but बदली there हुई, is a step. लेकिन कुछ कदम हैं। First step is forgiveness पहला from है sin. पाप से Then क्षमापन, you receive healing फिर चंगाई, physically, spiritually, mentally, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, and भावनाओं में। your sins are gone. You are made righteous with God. अभी तुम्हारे पाप निकल चुके, तुम प्रभु के सामने धर्मी Now ठहरे you हो। have confidence after death there is a life. अभी तुम जो है धाड़सी हो गए कि तुम्हें अनंत काल मरने के बाद भी तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त And होगा। then you will enjoy the blessings of God. You are no more under the curse. फिर तुम श्राप के अंदर नहीं, लेकिन अभी प्रभु के आशीषों का आनंद उठाओगे। Now you are enjoying the prosperity of Jesus, the richness of Jesus. अभी यीशु मसीह के संपन्नता को तुम आनंद उठा रहे Not the हो, worldly prosperity, संसार का धन का the नहीं, richness of God. मसीह के प्रभु के धन का। You think about riches, there is no end for Christ's prosperity. देखो, विचार करो, परमेश्वर का जो धन है उसका कोई अंत You will नहीं। prosper physically, शारीरिक रूप से You वो will तुम्हें prosper उन्नति materially. कराएंगे, मटीरियली आर्थिक रूप से भी you will prosper spiritually, आत्मिक रूप से वो तुम्हारी you उन्नति होगी, will prosper mentally. और मानसिक रूप से भी। Now finally you can share about shame. और फिर अंत में तुम बता सकते हो अपनी लज्जा के विषय John में। chapter 17 verse 22 says, योना का 7:22 कहता है, And the glory 17:22 which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. योना का 17:22 कहता है कि वो महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ। मैंने उन्हें भी दी है कि वे वैसे ही एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। Now it started with forgiveness, it is ending up with the glory. देखो, क्षमापन से शुरू हुआ, अभी महिमा में अंत हो रहा The है। glory which Jesus received from the Father, वो महिमा जो यीशु मसीह ने पिता से प्राप्त किया, He has given to us, उन्होंने हमें दिया है, that we may be one with Him. ताकि हम उसके साथ एक हो जाएं। Even Jesus and Father are one. देखो, यीशु और पिता भी एक हैं। What a prayer thing that is. Means our shame is gone. We are one with Christ. यानी देखो कितनी सुंदर बात है कि हमारी सारी शर्म निकल गई, हम मसीह के साथ में The एक हो devil गए। brought the shame, but Jesus Christ brought the glory to our lives. शैतान ने हमारे जीवन में लज्जा लाई, लेकिन यीशु मसीह ने महिमा को So लाई। what do we learn from the nobleman's son's healing?
अभी ये राजा के कर्मचारी के बेटे के चंगाई के द्वारा हम क्या सीखते हैं? This is the second miracle when Jesus did only one word, right? देखो यीशु मसीह ने दूसरा चमत्कार अपने जीवन में किया। Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. जब तक तुम लोग चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखोगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे। This morning, before I close this message, और ये संदेश को अंत करने से पहले speak the word. वचन बोलो। His word has power. प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। Everyone who accept the Lord in their lives as they hear the word, they will never be put to shame. देखो जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में और जैसे वचन को सुनेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। There is power in the word of God. प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। Your future is in words of God. तो तुम्हारा भविष्य प्रभु के वचनों में है। God says, "My word will take care of you." प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हें A संभालेगा। life without God's word does not have any meaning. तो ये जीवन परमेश्वर के वचन के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है। Embrace His word. उसके वचन को गले Lord, लगाएं। I love your word. प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम You करता know, हूँ। whatever that is written in this book of life, ये जीवन के पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, you know, in the words in this book of life, ये जीवन के पुस्तक में you know, I'm telling you that is your future. वही तुम्हारा भविष्य है। God says, "My word will take care of you." प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हें A संभालेगा। life without God's word does not have any meaning. देखो जीवन परमेश्वर के वचन के बिना उसका कोई You get अर्थ नहीं है। motivation speaking, you get all the speaking, everything we do, but without the word of God, there is no future. उत्तेजित करने वाले बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे लेकिन परमेश्वर के वचन के बिना कुछ नहीं कर Write सकते। it down. Your future is in the words of God. लिख कर रखे, तुम्हारा भविष्य प्रभु के हाथों में है। God says, "My word will take care of you." प्रभु कहता है कि मेरा वचन ही तुम्हें संभालेगा। Because God is not only promise making God, but He is a promise keeping God. परमेश्वर केवल ही वादों को करने वाले लेकिन वादों के पक्के What परमेश्वर is the हैं। three principle वो तीन सिद्धांत क्या हैं? from the life of noblemen? वो Some राजा got के healed. कर्मचारी के जीवन से जो उसका बेटा चंगा हुआ। When you pray, we must hear God. जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रभु की आवाज भी सुनना जरूरी We है। must allow God to talk. तो प्रभु को हमें अनुमति देनी है हमसे बोलने के लिए, Because He always have the better plans than you and me. क्योंकि हमसे भी उत्तम प्लान्स उनके हैं। You make many plans. तुम बहुत सारी योजना बनाते होंगे That is not from God. लेकिन वो प्रभु की ओर से You नहीं। want to see the better plans? क्या तुम अपने जीवन में सबसे अच्छे योजनाएं देखना You चाहते हो need प्रभु to के? trade the plans. तो तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना You चाहिए। need to trade your thoughts. तो तुम्हें जो है वहां पे एक अदली बदली करनी अपने विचारों के You और need to अपने प्लान्स trade your की, ways. अपने ही गतियों को तुम्हें प्रभु को देना है। Don't, tsunami आया, don't start making the boat, your own plans. तो सुनामी देखकर जो है अपना नाव बनाना शुरू मत करो, अपनी खुद की योजना बनाना। Corona is come, don't make your plans. कोरोना आया है, अपनी खुद की योजना मत बनाओ, Trust in God. प्रभु पे अपना भरोसा Believe डालें, in the word. Search the word, what the word of God says. वचन पे विश्वास करे, वचन पे देखे प्रभु का वचन क्या कहता है God इसके says, विषय में। "My ways are much greater than your ways." देखो प्रभु कहता है कि मेरी गति तेरे गति से भी अधिक बढ़कर Your है। plan is to swim and cross the sea. तू ये प्लानिंग बना रहे कि तू तैर कर उस समुद्र के उस पार Your जाना plan is चाहता to है। make the Titanic that sinks. तेरा प्लान है कि तू टाइटैनिक बनाना चाहता है जो डूबेगा। Because I'm making the sea only to divide and make a straight path where you can walk आराम से. देखो मैं तो समुद्र को ही डुबाऊंगा ताकि तुम आराम से चल सको। Hallelujah, that is our God's plan. तो देखो हमारी प्रभु की योजना वही है। Write it down in your heart. Heavens are higher than the earth. God says, "So are my ways are higher than your ways. My thoughts are higher देखो than your thoughts." वचन अपने दिल में इस बात को लिख कर रखे, जैसे पृथ्वी और आकाश में अंतर है वैसे तुम्हारी गति और तुम्हारे विचारों से भी जो है मैं बहुत ही, मेरे विचार और मेरी गति बहुत ही अधिक Hallelujah. बढ़कर It's है। very vast, God's thoughts. प्रभु के विचार बहुत बड़े हैं। Think the thoughts that are God's size this morning. तो को प्रभु के जो विचार है उस वैसे सोचो आज की Think सुबह, like God. प्रभु के जैसे सोचो। That thoughts will only come when you read the word of God. वो विचार तभी आएंगे जब तुम प्रभु के वचन को When you पढ़ोगे। don't read the word of God, the thoughts will never come. अगर प्रभु के वचन नहीं पढ़ोगे तो विचार नहीं If you आएंगे। want to have the God-sized thoughts and God-sized ways, you need to more depend on God's word. अगर प्रभु के साइज के विचार और गति को चाहते तो ज्यादा वचन पढ़ो। Number one is,
You know, you must hear the word of God. तो हमें प्रभु की आवाज को सुननी है And you need to depend on His word. और उसके वचन पर निर्भरित होना है, Because always God orders any blessing through His word. क्योंकि प्रभु जो भी आशीष देते हैं वो अपने वचन के What अनुसार is ही it? देते हैं। Go, your son lives. That's one word, order. प्रभु ने क्या कहा? जा तेरा बेटा जीवित है। That केवल was the आज्ञा, order from Jesus. यीशु की आज्ञा, Go, your son lives. जा तेरा बेटा तेरा जीवित That है। is the only one line He said. एक ही वाक्य कहा That He believed that order. और ये उसने उस पर विश्वास किया उन He शब्दों found पर the favor for His son. और अपने बेटे के लिए उसने कृपा पाई। Means he was believing that word, means he was carrying that personal presence of Jesus with him. यानी उसने वो वचन पे विश्वास किया, उसका मतलब क्या है? यानी यीशु मसीह की जो निजी उपस्थिति को लेकर अपने साथ गया। Believing His word means God is standing next to you. वचन पे विश्वास करना उसका मतलब है प्रभु तुम्हारे बाजू में खड़े हैं। Somebody asked me, how can you see God? किसी ने मुझे पूछा कि तू कैसे देख सकता है How can you परमेश्वर see को? Jesus? तुम यीशु को कैसे देख सकते Because हो? I see Jesus from the word. क्योंकि मैं यीशु को वचन के When द्वारा the देखता word हूँ। is there with me, जब वचन मेरे साथ में I है, experience His personal power, His personal presence standing next to me. तो उसकी निजी उपस्थिति को मेरे बाजू में मैं अनुभव One करता day हूँ। I was going through, I was in a meeting. एक दिन मैं एक सभा में था You know, it was a huge meeting where I was speaking the gospel. और एक बड़ा सभा था जहाँ पे मैं सुसमाचार A प्रचार कर lot रहा था। of villagites were there. वहाँ पे बहुत गांव के लोग थे। You know, they came. वो आए And when I came and I was preaching the love of Jesus, और वहाँ जाकर जब मैं यीशु मसीह का प्यार बांट रहा they था are not at all seeing me. तो वो मुझे नहीं देख रहे थे, You know, they were all seeing here and there, वो there यहाँ next वहाँ to the देख रहे stage. थे, वो यहाँ वहाँ स्टेज के पास देख For रहे a थे। minute, I was thinking, what is happening to this entire crowd? एक मिनट के लिए मैं सोच रहा था कि भीड़ के साथ क्या हो रहा है। Then after the meeting, I was so upset and I asked them what happened. मीटिंग के बाद मैं नाराज हो गया, मैं पूछा क्या हो रहा है ये। And some of the people, they from the crowd, they came and said to me, तो भीड़ में से एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, some group of people, कुछ झुंड के लोग आए ऐसे कहने के लिए, next to you somebody was standing. Who was that person? तुम्हारे बाजू में कोई खड़ा था, वो व्यक्ति कौन था? Then I looked at them. Who was that person? तो मैं उनके तरफ देखा और I'm कहा कौन alone है ये? standing and preaching. और मैं खड़ा रह के प्रचार कर रहा हूँ। No, that man, he was wearing the beautiful dress. वो आदमी जो खड़ा था वो बहुत ही सुंदर वस्त्र His पहने हुए face था। was so amazing. उसका चेहरा बहुत ही अद्भुत था, Radiant glory. बहुत ही महिमा से भरी हुई। And see, our skin disease is gone. Our crooked hands got healed. देखो हमारी चमड़ी ठीक हो गई, हमारे टेढ़े हाथ ठीक हो गए। And here I'm thinking these people are not listening to the word. और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग वचन नहीं सुन रहे हैं। And see, Jesus, when you carry the word, देखो जब तुम वचन लेकर His चलते हो personal presence will be with you. तो वहाँ पे यीशु की निजी उपस्थिति And आती when है। His personal presence is with you, और जब प्रभु यीशु की निजी उपस्थिति आती है, you know, His word will perform miracles. उसके वचन ही जाकर सारे चिन्ह को करेंगे। You need to testify how the nobleman testified what Jesus did for his son. देखो वो ये तुम्हें भी गवाही देनी है उसी रीति से जैसे राजा के कर्मचारी ने जाके सब लोगों को बताया जो प्रभु यीशु ने उसके बेटे के लिए किया। Hallelujah. Miracle in our life हमारे जीवन के चिन्ह always leads us to believe in the Lord more. तो उसके द्वारा हमेशा हमें प्रभु में और ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता And है। when we believe more in miracles, और जब हम चमत्कारों में ज्यादा विश्वास we करते हैं keep telling others too. तो हम दूसरों को भी बोलना शुरू करते हैं। हमको मिरेकल मिल गया, घर पे बैठने का नहीं है. तो हमें चमत्कार प्राप्त हुआ तो घर पे नहीं बैठकर रहना है। I had a disease called blood oozing from the nose. मुझे एक बीमारी थी, मेरे खून से बहुत मेरे नाक नाक से। से बहुत खून बहता You था। know, when I used to go to the sun, the blood will immediately start flowing like one bottle of blood. तो जब मैं धूप में जाता था तो तुरंत मेरे नाक से खून बहना शुरू होता, एक बॉटल कम से कम खून And निकलता था। immediately my body becomes so weak and I'll be on the bed. और तुरंत मेरा शरीर इतना कमजोर हो जाता था और मैं बीमारी स्थिति में It was, खट्टे पे लेटता। and this disease was like this. No, here some tap is open and the blood is coming like from the brain. तो वो बीमारी ऐसी थी कि ऐसा लगता कि यहाँ से किसी ने नल खोला है और ना जिससे मस्तक से ऐसा खून बहना शुरू हो जाता था। My father being the best doctor, he couldn't heal me. मेरे पिता इतने सबसे अच्छे डॉक्टर थे लेकिन बेहतर They डॉक्टर did होने के वो भी Ayurvedic, चंगा they did नहीं homeopathic, नहीं they दे did सके। allopathic, every pathic they did.
एलोपैथी आयुर्वेदिक सब कुछ दवाई किया, कुछ होम्योपैथी किया, कुछ नहीं हुआ। My mother was so worried what will happen to my son. तो मेरी माँ हमेशा चिंतित रहती कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा। But my auntie was a strong believer in the Lord. लेकिन मेरी आंटी प्रभु में बहुत ही One day, स्ट्रांग विश्वासी थी। those days it was the inland letters. उन दिनों में एक इनलाइन लेटर आती थी, My चिट्ठी। mother wrote to my auntie, मेरी माँ ने मेरे आंटी को पत्र लिखा, my son is unwell. मेरा बेटा बीमार है, I may lose him because the blood is not stopping. पता नहीं शायद मैं उसे खो दूंगी क्योंकि उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा है। And the reply comes from my auntie. तो फिर मेरी आंटी पत्र Those days, लिखती 2 है। days में letter मिल जाता through readers में. उन दिनों में 2-3 दिन में चिट्ठियां मिल जाती थी And you know, immediately the letter came. और फिर तुरंत वो पत्री आई, You are not going to lose him. He is going to serve the Lord. तू उसे नहीं खोएगी क्योंकि वो प्रभु का सेवा करेगा, God will heal him. प्रभु उसे चंगाई देगा। She prayed. उसने प्रार्थना की। And you won't believe that time there was a Jesus Calls campaign in 1984. तो तुम विश्वास नहीं करोगे, उस समय जीसस कॉल्स का कैंपेन था 1984 में। You know, I was, I think, 11 years old. शायद मैं 11 साल का था You know, वहाँ 11 years old, and the Jesus campaign was there. वहाँ पे जीसस कॉल्स का कैंपेन था। And my auntie, all they were all, you know, active workers of Jesus Calls. तो मेरे आंटी और सब लोग बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते थे जीसस कॉल्स में। And you know, we got an opportunity to pray with Uncle D.G.S. Dinakaran. तो हमें मौका मिला कि अंकल डीजीएस दिनाकरण के You साथ know, में हम my प्रार्थना mother करवा is सके। standing, my auntie is standing, the entire of family members are standing, and they want to just the man of God to lay the hands upon me. और देखो मेरे आंटी सब लोग, हम लोग पूरा परिवार जो है वहाँ पे खड़े रहे। हम लोग केवल चाहते थे कि परमेश्वर का दास हम पर के सर पर हाथ रख के हमें आशीष I दे। was so thin and weak. और मैं पूरा कमजोर था, बहुत ही I can't even, दुर्बल हो गया था। can't even open the eyes to the sun, so heavy. और मेरे आंखें भी नहीं खुल रही थी और मैं धूप को भी नहीं देख पा रहा था तभी। When we got a chance to the man of God, लेकिन जब हमें मौका मिला प्रभु के दास से प्रार्थना करवाने when we का, went there, he just touched his hand and said, "Be healed." और उसने केवल अपना मेरे सर पे हाथ रखा और इतना ही कहा कि चंगे हो जाओ। From that day till now, उस दिन से लेके आज तक the blood never came out of my nose. उसके बाद से कभी मेरे खून से, नाक से खून नहीं Did निकला। I stop telling that? क्या वो बताना मैंने बंद किया? After that, I went to the schools and I told what happened. और उसके बाद मैं स्कूल में गया, स्कूल में सबको बताया I जो हुआ went to मेरे my साथ। neighbors. मेरे पड़ोसियों के I पास गया। said, we went to the prayer meeting and God healed me. मैंने कहा कि हम प्रेयर मीटिंग में गए थे और प्रभु ने मुझे चंगा किया। God is a miracle worker. प्रभु चंगाई के परमेश्वर Jesus is the है। healer. यीशु चंगाई के Think about दाता the है। 11 years old boy telling about Jesus healing him, सोचो which I don't know about it. सोचो 11 साल का लड़का यीशु मसीह ने जो चंगाई दी, जो सबको जाकर बात कर रहा है, मुझे इस बात का पता भी नहीं था तब। Hallelujah. I want to tell you, never stop sharing the miracles. Somebody you're giving the opportunity to receive Jesus and his healings. देखो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने चमत्कार को शेयर करना न रुकना, क्योंकि किसी को तो तुम मौका दे रहे हो चंगाई पाने का। Don't stop sharing Jesus. यीशु के बारे में शेयर करना नहीं बंद God करना। bless you this morning with this scripture and this second miracles of Jesus देखो इस Christ. वचन के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। ये यीशु मसीह का दूसरा चमत्कार था। We पवित्र keep on शास्त्र। learning about the miracles of Jesus. हम यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सीखते You know, रहेंगे। only 2 words, so many things are there. देखो केवल 2 ही शब्द, लेकिन कितनी Go, सारी चीजें। your sons leaves. जा तेरा बेटा You पुत्र people, जीवित है। unless don't see signs, wonders, and miracles, meaning he's saying you don't hear God, you don't believe his presence, you don't even share. देखो तुम लोग जब What you have चिन्ह और received. अद्भुत काम को नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। यानी जब तक तुम जो है कुछ अपने जीवन में चमत्कार नहीं देखोगे तो शेयर नहीं करोगे। No. When you don't hear the Lord's word, तो तुम प्रभु के आवाज को नहीं you सुनोगे। don't want to hear God's word, तुम प्रभु की आवाज नहीं सुनना you चाहते don't हो, want to carry his presence, उसकी उपस्थिति को नहीं you लेकर don't चलना want to चाहोगे, share what miracles he has done. और जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया वो दूसरों के साथ नहीं That बोलना is the चाहते हो। meaning of Jesus is saying. You are only matlabi. यीशु मसीह कहना चाहता है कि तुम मतलबी You are हो, only matlabi. तुम केवल मतलबी Means हो। you have come for only for your profit. यानी अपने फायदे के लिए तुम आए हो। And this Roman man, अभी ये this Roman nobleman, ये राजा का who कर्मचारी is a Roman, जो is रोमी a है, heathen. वो अन्य जाति से है। He went back and he shared the gospel and the entire family got saved. देखो उसने वापस जाके सबको सुसमाचार सुनाया और पूरा उसका घराना उद्धार पाया। God bless you.
please, if your unsaved loved ones are not saved, please go and share the gospel now. देखो, अगर तुम्हारे घर के प्यारे लोग, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो जाकर उनसे सुसमाचार Be उनके like साथ this शेयर nobleman. करें। ये कर्मचारी के जैसे बनो। He is a heathen. वो अन्य जाति का था, He was under Roman. वो रोमियो के सरकार But के he नीचे था। shared the gospel and the entire household got saved. देखो, उसने जाकर सुसमाचार बांटा और पूरा घराना He उद्धार is not a पाया। Jew. वो कोई यहूदी नहीं He है, is not, tribe of somebody. या किसी गोत्र से भी But बिल्कुल नहीं he is था, a heathen. लेकिन अन्य जाति से था। Jesus worked miracles. यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म And किए। this heathen faith is believing the words of Jesus. That is the key. तो मुख्य बात यह है कि ये अन्य जाति का आदमी ये यीशु के शब्दों पे अपना पूरा विश्वास कर रहा है। Amen. So God bless you.